जी हाँ, बात किस्सा कुर्सी का की है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और किस्सा कुर्सी का के अहम पड़ाव में आज 5 राज्यों के चुनाव पर बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। चुनाव आयोग बस प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी कुछ ही देर में शुरू करने जा रहा है। 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों को लेकर ऐलान कर सकता है आज। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान। वहीं मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान करेगा चुनाव आयोग। बस कुछ ही देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें ये साफ हो जाएगा कि चुनाव कब होंगे, कब तक नॉमिनेशन फाइल किए जा सकते हैं, परिणाम कब आएगा, काउंटिंग किस दिन होगी और कब तक सरकारें अस्तित्व में आ जाएंगी। इन राज्यों की 5 राज्यों के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अब से कुछ ही देर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, राजस्थान विधानसभा चुनाव, मिजोरम विधानसभा चुनाव और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव। और इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए अब सबकी नज़रें निर्वाचन सदन यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस की तरफ हैं, जहां पर बस अब से कुछ ही देर में जो तय समय था वो समय बस थोड़ी ही देर में, और उस समय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। 12 बजे का समय निर्धारित किया गया था जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। अब 12 बज चुके हैं। बस कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आएगी और पता चलेगा कि इन राज्यों के चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर अहम तारीखें कौन सी हैं, कितने वोटर इन राज्यों में चुनाव में मतदान करने का अधिकार रखते हैं और कितने पोलिंग बूथ बनने वाले हैं, कि परिणाम कब आएगा, वोटिंग किस दिन होगी और कब तक सरकारें अस्तित्व में आएंगी। कई सारी चीज़ें आज चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ हो जाएंगी। बस अब से कुछ ही देर में समय 12 बजकर हो चुका है। बस जल्द ही चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव आपके सामने होगी। इंडिया न्यूज़ आपको लिए चलेगा चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर, ऑफिस, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और वहाँ पर हो रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप तक हम लाइव पहुँचाएंगे। Settle down. बोल दिया ना गद। So shall we begin? I would like to formally welcome you to this press conference by the Election Commission on forthcoming assembly polls to the 5 states of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. I have with me the Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar ji, the Honorable Election Commissioner Shri Anup Chandra Pandey ji, and the Honorable Election Commissioner Shri Arun Goyal ji. We also have with us today senior officials from the ECI headquarters. I'm B. Narayanan, DG Media for the Commission. The format is as follows. There will be opening remarks by the CEC along with the presentation. We will share the PDF copy of the presentation with all of you after the event is over. Following this, there will be a brief question and answer session. When you want to ask a question, raise your hand. Wait for the chance to be called to put your question. I will direct the micer to come to you. When it's your turn, introduce yourself and your organization and then ask your questions. Please keep your mobiles on silent mode. Sir, I request you to deliver your opening remarks. My colleague, Honorable Election Commissioner Shri Anup Chandra Pandey ji on my right side and Shri Arun Goyal ji on my left, ECI officials and friends from media in such a large number, very good morning to you. I hope you had a good weekend. You were all worried that the conference may happen during weekend. So I hope you had a good weekend. And it's a good starting on Monday. Friends, as you are aware, we have gathered here today to declare the schedule for the elections to the legislative assemblies of Mizoram, Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Telangana.
And we have gathered here today after a significant hiatus of 6 months. We met last. And as we stand on the cusp of elections in these states, it is worth noting that these polls hold a unique significance, not only for the residents of these states, but also for the nation. We will now, after this, meet in this form for the 24 elections. In the span of 40 days, the Commission has visited 5 states, all the 5 states, and held very detailed discussions with the political parties there, with the enforcement agencies of the central government and the state government. For example, all across the spectrum, to just tell you, income tax, excise, DRI, narcotics, coastal guards, state police, banks, RBI, civil aviation, everyone, whosoever is involved in some form of enforcement for the elections, RPF, Railway Protection Force, GRP, so everyone. So what transpired, what did they tell us, and what did we told them, all that I will brief you. We met the political parties representatives, और उनके भी जितने सुझाव, जितने फीडबैक थे, वो हम सब लोगों ने लिए. उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा. I'll use this opportunity to brief you about what had happened during these last 6 months when we have started the preparation for the elections. मुझे मालूम है कि आप लोग शेड्यूल जानने के लिए इच्छुक हैं ज़्यादा, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज़ करेंगे आपको ये बताने के लिए कि कितनी मेहनत इन चुनावों को कराने के लिए होती है. So friends, just to give you an overview, the Mizoram Assembly's term is on 17th December 23, then all of the others in the latest by 16th of January 24. And there are total assembly constituencies, number is 679 if you total up assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. तो जो ये 679 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो पूरी कंट्री की 4200 लगभग लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का 1/6 है. और इसी प्रकार से जो इनके इलेक्टर्स हैं, जो 16.14 करोड़ है कंबाइंडली, वो भी लगभग 95 करोड़ वोटर्स के 1/6 हैं. सो द एंटायर कंट्री by that standard would be going to polls in almost in the 1/6 of the country's spread of the voters and the assembly constituencies. The general overview, if we were to give you, the Mizoram has 8.52 lakh voters, Chhattisgarh 2.03, Madhya Pradesh 5.6, Rajasthan 5.2, Telangana 3.17, and total voters in these states would be totaling to 8.2 crore male and 7.8 crore female voters. Very interesting fact is that first time voters in these states would be 60.2 lakhs. I would elaborate on this point little later when I come to that. But this emphasis during the special summary revision in these states has been such that we have concentrated on the enrollment of the young voters, PWD voters, 80+ voters, centenarian voters, and also the improving the election gender ratio for these states. अगर आप देखेंगे तो जो PWD हैं उसके total voters की संख्या 17.34 lakhs है, which is who are also entitled to vote from the comfort of their home if they are not able to come to the polling station. Similarly, 80+ 24.7 and centenarian voters 32,410. All these 3 categories को पहली बार असेंबली इलेक्शंस में अपने घर से वोट की सुविधा प्राप्त होगी. और फ्रेंड्स, द लास्ट कॉलम अगर आप देखेंगे, इलेक्टर जेंडर रेशियो, तो 2 स्टेट में ये जेंडर रेशियो ज़्यादा फेवरेबल है विमेन का. इट इज़ 1063 एंड 1012, विच इज़ अ वेरी हैप्पी स्टेट. इन अदर स्टेट्स ऑल्सो इट हैज़ इम्प्रूव्ड.
because of the special efforts undertaking during the SSR, और इस SSR की वजह से इन सब में भी ये इलेक्टोरल रेशियो काफी बड़ा है. तेलंगाना is also very high, 9998, and so there is improvement even in the Rajasthan. Now, if you look at the inclusive electoral roll, we are emphasizing a lot. Let me repeat. जो इलेक्टोरल रोल है वो पूरी तरीके से प्योर हो, वो पूरी तरीके से हेल्दी हो, इसके ऊपर में बहुत एम्फेसिस है. और ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो एसएसआर पूरी कंट्री का है वो भी शुरू होने वाला है. सो जस्ट टू से दैट वुमेन वोटर्स, यंग वोटर्स, particularly vulnerable tribal groups, persons with disabilities, senior citizens, transgenders, सबके ऊपर में इस एसएसआर में जो इन 5 स्टेट्स में हुआ विशेष अभियान चलाया गया, ताकि पूरा का पूरा जो इलेक्टोरल रूल है उसमें पहले सबको शामिल करें और फिर सबको हम वोटर पोलिंग स्टेशन पे लेके आएं. So this is the effort. How do we first enter them into the roll and then bring them to the poll? So from roll to poll is the emphasis by which we are all working. So now, friends, very interesting and a special effort which the commission is undertaking. ये जो particularly vulnerable tribal groups हैं पूरी कंट्री में 75 ऐसी कम्युनिटीज हैं, और कमीशन ने ये बीड़ा उठाया है कि हम इनको सबको जो लास्ट पंक्ति में हैं, दे आर ऑलमोस्ट द लोएस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस इन द एंटायर कंट्री इन द अमंग्स्ट द वोटर्स. So we will enroll them fully. And as a happy reporting to you, in these 4 states we have 12 PVTGs and they have been enrolled 100%. तो ये हमें बड़ी खुशी का विषय है कि 100% एनरोल हुई हैं, और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इनको किस प्रकार से हम पोलिंग स्टेशंस में लाने की कोशिश करेंगे. अगर यूथ की बात करें तो 60 लाख जो यूथ हैं वो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे 18 to 19 years in these 5 states. And as you are all aware, there was an amendment for qualifying dates to be changed to 4 dates instead of the 1st January of the every year. So उसकी वजह से 15.39 lakh voters as such who are completing their 18th year after the 1st January 2023. And because of this amendment, 15.3 lakh voters would be able to exercise their franchise in this election. This is the positive effect and of that amendment which we brought. And in line of that, we are also taking up to showcase that these 2,900 plus polling stations would be managed by our youngest employees, so that we also focus on and tackle the youth apathy which we keep encountering in states after states. Similarly, if we come to women, as I mentioned earlier, women का जो gender ratio है वो भी लगातार improve हो रहा है. So Chhattisgarh has improved from 995 to 1012. For Madhya Pradesh from 917 to a jump of 945. Mizoram again from 1051 to 1063 gender ratio, and Rajasthan and also Telangana from 982 to 998. And net addition of the female electors, which is also a very happy state for us, is 23.6 lakhs. तो अब एफर्ट ये है कि उनको पहले हमने पोल में जोड़ दिया और अब हम उनको पोलिंग स्टेशंस पर लेके आए by providing them all kinds of facilities which are possible. How do we do that? So if you look at the inclusive and pure nature of the electoral roll, since the efforts we are making after the second SSR which happened in these 5 going states, 57.89 lakhs is the total addition, and this happened. There is a house-to-house survey which is happening which happened in these states and which is also happening in the entire country in a run-up to the SSR for the entire country. Deletions were 20.59 lakhs, and most importantly the modifications. किसी का एड्रेस गलत है, किसी का फोटो ठीक नहीं है, किसी का फोन नंबर डाला हुआ नहीं है, सबके लिए 22.35 लाख मॉडिफिकेशंस, और 18 to 19 एज ग्रुप में 18.37 लाख एडिशंस. ये सभी स्लाइड्स की कॉपी आपको साइड बाय साइड मिल रही होगी. These are being put on the media website and all.
So you don't have to repeat this. I am sure you are getting it side by side, and it will be posted also in our website immediately. Next. Before coming to the overview of polling stations, friends, through you, let me tell everybody, all voters in the country, that जो जनरल SSR है, summary revision for the year 24, would start from 17/10/23. Draft rolls will be published on 17/10/23. तो मेरे सभी वोटर्स से आपके माध्यम से अनुरोध है कि अपना अपना नाम देखें, अपना अपना पोलिंग स्टेशन देखें। कोई भी नाम किसी को ऐड कराना है, या हमारे यंग वोटर्स को तो ऐड कराएं, महिलाओं को जिसको भी ऐड कराना है ऐड कराएं उसमें। किसी को चेंज करना है, फोटो चेंज करनी है, मोबाइल नंबर लिखना है तो लिखाएं। घर घर में हाउस टू हाउस सर्वे वुड बी अंडरटेकन बाय BLOs फ्रॉम 17/10/23 टू 30/11/23, यानी 17 अक्टूबर 23 से 30 नवंबर 23 तक पूरी कंट्री में किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी एडिशन कराना है, डिलीशन कराना है, कोई भी नाम में मॉडिफिकेशन कराना है, एवरीबडी इज वेलकम टू डू दिस आइदर थ्रू BLO और थ्रू दी वोटर हेल्पलाइन BHA application. You can directly do this. So I would appeal through you to everybody to kindly make these changes. Friends, now coming to the polling stations, there would be 1.77 lakh polling stations in these 5 states, and of which 1.01 would have webcasting facility. We have prescribed 50% webcasting, and with a liberty to the states on the basis of vulnerabilities to increase it on their own. So this would be close to 1.01 lakh. Then all this would be monitored through the control rooms, and the number of women managed polling stations there would be 17,734 polling stations which will be model polling stations. There would be PWD managed polling stations, 621, and women managed would be 8,192, more than one in most of the constituencies. Coming to the assured minimum facilities, every polling station would have toilet, drinking water, ramp, लाइट, हेल्प डेस्क, साइनेज, सभी पोलिंग स्टेशंस पे सुविधा होगी। और प्रयास यह है कि पहले आपको पूरी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल करें। शामिल करने के बाद आपकी जो वोटिंग एक्सपीरियंस है पोलिंग स्टेशन पे, उसको भी और सहज और सुगम बनाएं, और उसको ये भी माध्यम बनाएं कि सोसाइटी में PWDs, ट्रांसजेंडर, वुमेन, ओल्ड एज, सब किसी को सेंसिटिविटी स्पेसिफिकली एक थ्रू द मीडियम ऑफ द वोटिंग इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, and entire we showcase and we put an example before the society that yes, at the polling station when we can do this respect and the separate treatment for them which is their due, why can't we do it elsewhere in the society? So this is our modest effort to bring this fact into the limelight. Coming to the elderly voters, as you know, in all these states also they will have the facility to vote from their home. Form 12D 5 दिन के अंदर वो भर सकते हैं। Similarly, next, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है स्लाइड जो आपको दिखाना था। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर हम लोग अंदर जा रहे हैं ताकि हर वोटर के पास पहुंच सकें। अगर आप फर्स्ट स्लाइड देखेंगे, ये फर्स्ट टाइम पोलिंग स्टेशन है। 8 किलोमीटर इससे बचेगा चलना, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़, दिस इज दोज एरियाज। सिमिलरली इन राजस्थान, दिस इज ऑल्सो न्यू बूथ। तो एक स्पेशल कोशिश है कि जो लोग को कम से कम चलना पड़े, वैसे भी हमारा नियम है कि 2 किलोमीटर के अंदर में हम देंगे, बट जहां पॉसिबल नहीं था वहां भी हम भर रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारे, मैंने आपको बताया था, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके लिए भी हम स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बना रहे हैं। बफर जोन ऑफ फैन के अंदर में ये पोलिंग स्टेशन होगा, जो कि मांडला MP में, जस्ट दी शोकेसिंग। और अगर आप नेक्स्ट वाला देखें, पिपरिया डिस्ट्रिक्ट नर्मदा MP, इसमें
165 kilometers from district headquarters, tribal dominated district. People will go, and this is the kind of rivers and all terrain they will cross. This is in Mizoram, 22 non-motorable polling stations. तो ये सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहा है कि जो पोलिंग पर्सनल हैं वो कितनी मेहनत से, कितनी दूर में अपना ड्यूटी करने जाते हैं, और 6 महीने की तैयारी सिर्फ इसीलिए है जिससे कि सबको सुविधाएं मिल जाएं। और इसीलिए आई विल लाइक टू अपील थ्रू यू टू ऑल दी वोटर्स ऑफ दीज 5 स्टेट्स कि अगर हमने इतनी मेहनत की है तो आप भी कम से कम वोट देने के लिए जरूर आएं। स्पेशल रिक्वेस्ट टू यूथ, विमेन एंड दी पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, दोज वेयर वी सी ए लिटिल एपैथी। फ्रेंड्स, आपको पहले भी ये बताया है हमने कि सी विजिल के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है किसी भी तरीके की इंड्यूसमेंट की, और जिसके पास हम 100 मिनट में पहुंचेंगे। और इसका प्रयोग में रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस में हमें काफ़ी शिकायतें मिली हैं और इंड्यूसमेंट रोकने में भी मदद मिली है। नो योर कैंडिडेट्स, ये हम हर स्टेट में दिखा चुके हैं कि किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में 3 बार न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भी आगे बढ़ के ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना, क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट चुने गए हैं उनके अतिरिक्त कोई और उपलब्ध नहीं था। वंस दे गिव दिस इंफॉर्मेशन, इट इज फॉर द वोटर टू डिसाइड on the basis of an informed choice as to what he wants to do. Another new initiative we have taken is on the integrated election expenditure monitoring. कुछ समय पहले, और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम सोचते हैं हमें मिलेंगे, और ये एक ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए नया इनिशिएटिव है, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको 31 अक्टूबर तक कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट देनी होती है कि उन्हें कहाँ से कितने पैसे मिले, और उसी के बेसिस पे उनको इनकम टैक्स की छूट मिलती है। तो पीछे देखने में आया था कि इसके बारे में कुछ सूचनाएं समय पर भी नहीं आती थी, और कुछ ऐसे केस भी थे जिसमें छूट नहीं वाजिब होने के बाद भी ले ली गई थी। तो इन सभी चीज़ों को भरने के लिए, कंप्लीट करने के लिए नाउ न्यू IT सिस्टम हैज बीन स्टार्टेड, एंड इन विच द कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट विच इज ड्यू ऑफ एवरी ईयर बाय 31 अक्टूबर वुड हैव टू बी फिल्ड। सिमिलरली, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स पॉलिटिकल पार्टीज को अब इसी IT टूल्स में डिजिटल मोड में देनी पड़ेंगे, और एक और रिपोर्ट उन्हें देनी होती है पॉलिटिकल पार्टीज को आफ्टर एवरी इलेक्शन, जिसमें वो रिपोर्ट 30 दिन के अंदर देनी होती है जैसे ही चुनाव खत्म हो, और 75 डेज के अंदर में फाइनल रिपोर्ट, ताकि उस इलेक्शन में कितना खर्चा पॉलिटिकल पार्टी ने किया। तो अब हमारे पास किस कैंडिडेट ने कितना खर्चा किया ये तो होगा, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ये भी होगा। दिस विल हेल्प इन ईज फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू फिल अप दिस डिटेल्स ऑनलाइन, एंड वुड ऑल्सो हेल्प अस in keeping it at one place and do whatever assessment and analytics is possible in addition to housekeeping. Similarly, जो इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस का फोकस चुनाव आयोग और गंभीरता के साथ दे रहा है, उसके लिए भी एक इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम इस बार नया शुरू किया जा रहा है इन 5 असेंबली इलेक्शंस में। व्हाट इज दिस? जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हम सबको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस देते हैं, जो मैं इसके तुरंत बाद आपको दिखाऊंगा बिफोर कमिंग टू द शेड्यूल, कि आप जो भी सीजर कर रहे हैं उसको भरिए। डोंट वर्क इन साइलोज, work in a coordinated manner, but it doesn't get coordinated often. So this system will give an access, will onboard all the central and state enforcement agencies during the election period, and they will have to report as soon as any action they take. And if they don't fill up, it will also tell us that for so long no action has been taken by a particular agency. This will also help us in compiling, do the trend analysis, do various kinds of things possible in that particular state. और आप सब अवगत हैं कि हर स्टेट के बहुत सारे स्टेट स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं। अगर मिजोरम में इंटरनेशनल बॉर्डर है
तो राजस्थान में भी वही इशू है, तो कहीं पर इंटरस्टेट ड्रग्स की प्रॉब्लम है, तो कहीं पर एक्सेस कैश और मनी पावर की प्रॉब्लम है. ऑल दैट with the help of the respective enforcement agencies would get collated, and we hope would also get analyzed on a far more real-time basis, so that we can take corrective actions and we can nudge them or we can appreciate them. Uh, in this reference, we have got some check post established, which is in Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Telangana, in all 940 check posts. These 940 check posts belong to different enforcement agencies, which is namely, by and large, police, state police, excise, commercial taxes, forest and transport. तो इन सब पांचों की जो पावर्स हैं वो अपने अपने एक्ट के अंदर में अलग अलग पावर्स हैं. नाउ व्हाट वी हैव डायरेक्टेड देम टू डू ए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, आई मीन पूल देयर रिसोर्सेज, एस्टैब्लिश सिनर्जीज. पांचों एक साथ मिलकर काम करें. और क्या काम करें? इन 940 प्लस चेक पोस्ट पर इंटरस्टेट बॉर्डर्स में दे विल कीप ए वेरी स्ट्रांग वॉच, and we have almost told them to dry up inflow of cash, liquor and drugs. आपको जब पिछले कर्नाटका इलेक्शन हुआ तो वहाँ जाने के बाद जब हम रिव्यू करके आए तो जो 2018 का सीजर था वो एमसीसी अनाउंस होने तक उससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कर दिया था. सो दिस इज ए रिन्यूड फोकस एंड ऑल दी चेकिंग ऑफ कार्गो मूवमेंट थ्रू नॉन शेड्यूल्ड चार्टर्ड फ्लाइट्स. This we will issue the guidelines also in greater detail. ऐसी संभावना होती है कि जो पैसेंजर्स के अलावा कार्गो मूवमेंट्स है उसमें भी कुछ ना कुछ इन पोल बाउंड स्टेट्स में कोई मटेरियल इंड्यूसमेंट के थ्रू जा सकता है. कार्गो के पार्सल्स का रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू भी चेकिंग शुरू हो. मनी पावर, ऑल दीज एजेंसीज हैव बीन स्ट्रिक्टली आस्क्ड टू कीप strict vigil and report in the system which we have stated just before this. Number of observers will be deputed, the general observers, police observers and the expenditure observers, and adequate CAPF. Similarly, the directions again at the polling stations, wherever necessary, we will keep the female staff to check impersonation. We will keep polling parties to move only in the official vehicles, ताकि जैसे पिछले चुनाव में एक आध जगह एक प्राइवेट व्हीकल में बैठ गए थे उस तरह की घटना ना हो. ये भी कहा गया है स्पेसिफिकली कि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स को चुनाव से कम, ऐसा नहीं कि पहले दिन या दूसरे दिन में ही दें, एक आध हफ्ता पहले कम से कम जरूर बांट दें, so that people can know which booth, which place. Though we request them to check that much in advance on the voter helpline app. नया एक और चेंज इस बार किया गया है because of the experience which we had in certain states. जो पोलिंग पर्सनल हैं उनको पोस्टल बैलेट मिलता था और पोस्टल बैलेट मिलने के बाद वो उसको घर ले जा सकते थे और कभी भी बाई पोस्ट भेज सकते थे till the date of counting. That's the standard practice for the postal ballot. It has been changed now. ये इसलिए कि बहुत सारे पोलिंग पर्सनल्स कुछ स्टेट में कंबाइन होके पोस्ट पोल अपनी कोई न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं, बिकॉज मार्जिन्स बहुत कम होते हैं. तो अगर 100, 200, 400 लोग भी मिल जाएं तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सो दिस कुड बी ए पोस्ट पोल opportunity for some to influence the voters or influence the results. Therefore, all of them now onwards in all the elections will vote only at the facilitation center when they come for training. This is before, so this will be physically collected and the postal ballot facility is available in the same sense but at the facilitation center. Next. Now coming to friends, after mentioning that we are focusing far more on the inducement free elections because money power is one thing which we want to restrict,
we now will come to the schedule which you are awaiting, state by state. And now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh, and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. Thank you. Thank you for those detailed remarks, sir. Just hold on. Just hold on. Floor is open for questions. Don't stand up. Just keep sitting and just put up your hands and I'll direct the mic to come to you. ये पांचों स्लाइड्स की डेट वैसे अभी आपको भेज दिया होगा. So it's being tweeted to you. It's being tweeted, but हम दोबारा रिपीट कर दीजिए. Yeah. मिजोरम, visible to all. Next. Next, Madhya Pradesh, date of poll 17th November. Rajasthan, 23rd November. And Telangana, 30th November. We are doing counting on 3rd of December and finishing the entire election exercise on 5th of December 23. Yeah, floor is open for questions. Gentleman in the first row. Yeah. उनको माइक दे दीजिए. We'll come to you next. आपको आएंगे second. गुड आफ्टरनून सर, मोहित दुबे हूँ सर, न्यूज़ नेशन चैनल से. सर मेरा सवाल ये है कि खासतौर पे अगर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के परिप्रेक्ष्य में है, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में आप मतदान करा रहे हैं, नक्सल प्रभावित इलाका है कई. सरकार का दावा है कि नक्सलिज्म तो हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन इस बार भी आप 2 चरणों में मतदान करा रहे हैं. कितनी बड़ी चुनौती जो है नक्सल प्रभावित इलाकों में होगी आपको मतदान कराने के मद्देनज़र, क्योंकि 7 राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ से जुड़ती है जैसा आपने कहा. इसके अलावा तेलंगाना के भीतर पिछले चुनाव में तमाम कैश और लिकर की बरामदगी हुई थी. इस बार कितनी चुनौती तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आपको लेकर होने वाली है? Yeah, gentleman in the second row there. Yeah, mic is coming to you. Just wait. Yeah. सर मैं श्रीकांत भाटिया हूं, संवाद सिंधी न्यूज़पेपर, हमारी नज़र न्यूज़ चैनल है. सर ये आचार संहिता के जो उल्लंघन होते हैं इलेक्शंस में, देखा गया है कि कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ आचार संहिता उल्लंघन के केस दर्ज हो जाते हैं. तो सर कोई आपके पास डेटा है कि लास्ट इलेक्शन में आचार संहिता उल्लंघन में क्या लीगल एक्शन लिया गया कैंडिडेट के खिलाफ? और पॉलिटिकल, एक छोटा सवाल सर, आपने कहा कि जो कैंडिडेट पैसा खर्च करता है उसका रिकॉर्ड यहाँ रखा जाएगा. क्या वो रिकॉर्ड आम पब्लिक देख सकती है कि किस कैंडिडेट ने इलेक्शन में और किस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया? Yeah,
Gentleman in the second row there, in the middle of that row, please. सर मैं प्रदीप कुमार टोटल न्यूज़ से। सर मेरा सवाल यह है कि आपने आपराधिक छवि वालों का जो जिक्र किया है और उसको लेकर जो एक्शन की बात की है और जो प्रचार भी करना होगा उनको 3 बार बताना, लेकिन क्या ऐसे आपराधिक छवि वाले उनकी रोकथाम को लेकर इसके अलावा आपके पास क्या उपाय रहेगा, और अगर जानकारी नहीं मिलती तब एक्शन क्या होगा? The lady at the back, over there, yeah. Yeah, give it to the lady, yeah. मीतू जैन फ्रॉम द वायर। मेरा सवाल इलेक्ट्रल रोल्स की प्योरिटी को लेके है। आपने बोला है कि जो बीएलओ होगा वो जो डेटा है वो अपडेट करेगा। सवाल ये है कि बीएलओ कितना कंप्यूटर savvy है ये डेटा अपलोड करने के लिए, और ये डेटा वो खुद अपलोड करता है या इज़ इट आउटसोर्स टू समबडी एल्स जो ये काम करेगा? और इफ इट इज़ आउटसोर्स देन व्हाट इज़ द प्रोसीजर दैट इज़ फॉलोड फॉर आउटसोर्सिंग this work to somebody who would be uploading this data? Thank you. Just we'll have another round later. Okay. छत्तीसगढ़ में चुनाव के विषय में आपने प्रश्न पूछा। देखिए, हर नागरिक को, हर वोटर को हम रजिस्टर करें और हर वोटर के पास में हम बूथ लेके जाएं ताकि वो अपना वोट डाल सके और उसको सारी सूचना जो उसको इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए आवश्यक है वो उस तक पहुंचाएं। फेज 1, फेज 2 इन ऑल द इलेक्शंस दैट विल बी डन, और उसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। इसलिए हमें सबको अपील है कि वो सब वोट देने आएं, और जो जहां भी जितनी भी सुविधाएं और जितनी भी सुरक्षा देने का जरूरत है वो असेसमेंट करके उतनी वहां प्रोवाइड की जाएगी। कैश और फ्रीबीज, कैश, फ्रीबीज, ड्रग्स, लीकर, कंज्यूमेबल गुड्स, ये मेनेस है। हम लोग उसके प्रति पूरी तरीके से सजग हैं। जस्ट गिव यू ए स्मॉल फिगर, जो अभी पीछे 6 इलेक्शंस हुए उसमें अगर मैं आपको अलग से भी दिलवा दूंगा, लेकिन लगातार उनमें वृद्धि का जो प्रतिशत है, इन सम स्टेट्स इट इज अप टू 6000%, बट इन ओवरेज इट इज, मैं बताता ही हूं आपको एग्जैक्ट। कर्नाटका वॉज 83 crores in 2017. First I will speak the last election figure, then the recent. 83, which has increased to 384 crores. Tripura was 1.79 crores, increased to 45 crores. और त्रिपुरा में violence, you all remember, 0, repoll 0, and this was the kind of improvement in the seizures. So what we are trying to do is to improve the overall environment of elections, be it violence, be it freebies, be it the ease of voting for the thing, be it the improvement in the human face of the entire electoral roll, transgenders, PBTGs. So it's an overall qualitative and quantitative change in the electoral roll, also in the way elections are held. Nagaland, 4 crore to 50 crore. We used to be concentrating more on the peaceful elections which happened there. Simultaneously this also happened. Meghalaya, 1.1 to 74 crores. All these figures we will get put on the social media also. Gujarat, 27 crores to 800 crores. We caught huge drugs factory. Similarly in UP elections it was caught through the seas. HP, 9 crore to 57. Uttarakhand, 6 to 18. So, likewise, in all these states, and therefore, are very strict instructions to all the enforcement agencies, and we mean business. We have told them. It is not that हमने बोला और हम बोल के उनको वापस चले आए, नहीं. Railways, airports,
private airfields, private unscheduled flights, drugs, borders, national and international, both. Storage of godown in the godowns. All godowns have been identified by the enforcement agencies in each of these states where there could be a possibility of storage of any material of freebie. So, I think you will get to see the results and then decide for yourself, as I have explained about the 7-8 states. So, we are committed, and also more responsibility on us to prove this in these 5 elections, because we want to go clean and far more into the 24 elections. आचार संहिता का इलेक्शन आपने उल्लंघन पूछा। आचार संहिता का उल्लंघन जैसे जैसे होता है उस पर हर एक पर कार्रवाई होती है। आप देखने से शायद रह गए होंगे, ये सब उपलब्ध हैं और उसमें लार्ज नंबर में हर स्टेट्स में हुई हैं। लोगों को जिन्होंने कहा है उनको वार्निंग्स दी गई हैं, केसेस हुए हैं और उन केसेस को हम जब भी वहाँ जाते हैं रिव्यू करते हैं। आपराधिक छवि के लोगों के बारे में जो प्रश्न पूछा गया, उनको वो एडवर्टाइजमेंट देना मस्ट है। That is what is the extent legal provisions as of now, regulatory framework, that उनके बारे में बताना वोटर्स को, ये हमारा कार्य है। जब एक बार वोटर को बताया तो उसको इन्फॉर्म चॉइस कि वो किसको वोट देंगे, ये उनका कार्य है। जो आपने इलेक्टरल रूल्स की प्योरिटी के बारे में पूछा और वर्क आउटसोर्स टू आउटसाइडर्स, there is no electoral roll related work which is ever outsourced to anybody. So let us clarify this all over again. किसी के पास में भी, it is again through you, the SSR work is starting in the entire country, except the officials or the government servants and the BLOs. Nobody is authorized to do any kind of survey or electoral related roles in the country. So much so, even the awareness works which the civil society does is not to involve in the profiling of the voter at all. So this is absolutely clear. और वोटर्स के घर में हाउस टू हाउस BLOs जाएंगे। और जहां तक आपने इलेक्टरल रोल्स की और BLO की कॉम्पिटेंस की बात की, सो देखिए, जब 18 साल में सबसे पहले वोटर बड़ा होता है तो मोर और लेस इंडिपेंडेंटली सरकारी तंत्र से सबसे पहले जो उसका एक कॉन्टैक्ट होता है वो BLO से होता है, बिकॉज ही इज एंटाइटल्ड टू गेट ए वोट। सो आर 10 lakh plus BLOs, and we want to thank them here. They are working very hard, going house to house, doing a survey. And house to house survey is available to them, and there is a application, IT based, which is available to them, and all of them, by and large, using that application. And also what they do, they are maintaining a BLO register. It is the purity of the electoral rolls in terms of all the parameters, like how much should be the 18 to 19 cohort, how much should be the 80 plus cohort, how much should be the women, how much they should compare to the population growth, how much transgender. हिमांशु भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक मेहता जी हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मेरे सहयोगी मनोज मनु भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड हैं। मनोज मनु, दो तारीखें 7, 17, इन दोनों में ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के चुनाव निपट रहे हैं। जो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने सारा का सारा प्लान सामने रखा है, मेरे ख्याल से कोई ज्यादा दिक्कत, कहीं किसी तरह की समस्या नहीं दिख रही है। और मैं जैसा कि साफ तौर पर बता दें कि मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग है, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग है सिंगल फेज में। छत्तीसगढ़ में जैसा कि हम शुरू से बता रहे थे कि 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका अभी भी छत्तीसगढ़ है, वो चुनौती अभी भी देश के लिए, प्रदेश के लिए बनी हुई है। तो 2 फेजेस में रखा गया है। 23 नवंबर को राजस्थान है, और इन सब के बीच राजस्थान 23 नवंबर को है, तेलंगाना 30 दिसंबर को है। तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति है, वो स्थिति ये कह सकती है कि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 तारीख को, यानी कि 3 दिसंबर को
सभी राज्यों में जो विधानसभा हुए हैं 5 राज्यों में, उनके परिणाम सामने आ जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि कौन सा राजनीतिक दल और कौन सा राजनेता कितने पानी में है। भले ही घोषणा पत्र हो, लोक लुभावन तमाम सारी घोषणाएं की हो, किसी ने लाडली लक्ष्मी, किसी ने लाडली बहना, स्कूटी, मोबाइल, तमाम सारी, मतलब लूट सके तो लूट, ये फ्री की लूट तो थी। और इस बार के विधानसभा में ये लूट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भले ही फ्री वीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा हो, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने किया हो, और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों को नोटिस भी इशू किया है, इस पर जवाब मांगा है। यह भी देखना होगा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई कॉल लेता है क्या उसमें चुनाव जब तक ना हो जाए उसमें कहीं रोक नहीं लगाई जाती है, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन यह साफ हो चुका है कि 3 दिसंबर को परिणाम आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ की एक चिंता है, 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, बाकी सबकी तारीखों की घोषणा कर दी है। राकेश कुमार सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि चुनाव की तारीखें जो हैं वो निकल कर आएंगी, इन चुनाव की तारीखों को लेकर क्या कहा जाए? देखिए मनोज, जिस बात का हम लगातार सुबह से जिक्र कर रहे थे कि जो 4 राज्य हैं वो एक चरण में होंगे, एक गो में होंगे, और वही हुआ। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ को लेकर हमने स्पष्ट पहले किया था कि यहां पर जो विधानसभा चुनाव है 2 चरण में होंगे। यानी जो इंडिया न्यूज का जो खबर थी उस पर मोहर लग गई है। लेकिन रही बात जो इन 5 राज्यों की तैयारी को लेकर, खास तौर पे 3 जो हिंदी हार्टलैंड के जो राज्य हैं, मसलन बात करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ पर चुनावी बिगुल बज चुका है। आज से ही जिस तरह से आप मुख्य चुनाव आयुक्त का सुन रहे थे, जैसे ही घोषणा हुई उसके बाद आचार संहिता लागू हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह से ही, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इनके मुख्यमंत्री कार्यालय में, सचिवालय में भागदौड़ मची हुई थी। जितनी भी फाइल थी वो सारी फाइलों पे साइन किए गए। यहां तक कि मध्य प्रदेश में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री निवास पर एक बैठक भी आयोजित की गई थी और नामों को हरी झंडी देने की बात की जा रही थी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पर मना कर दिया। मैं एक बार इस वक्त आपको लेके आता हूं, यहां पर जो चुनाव होने जा रहा है वो 17 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, राजस्थान में 23 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, और छत्तीसगढ़ में जैसे कि आप देख सकते हैं चेहरों के तौर पर भूपेश बघेल, नरेंद्र मोदी और रमन सिंह है। वहां पर 2 चरणों में, यानी कि 7 और 17 2 तारीखों में चुनाव होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये 3 राज्य हैं, इन 3 राज्यों का बिगुल बज चुका है और अब आचार संहिता लग चुकी है। सबसे बड़ी राहत की बात है कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने, जिनके ऊपर राजनेताओं का दबाव था, घोषणाएं करने का दबाव था, आनन फानन में लोकार्पण और शिलान्यास के लिए योजनाओं का दबाव था, अब वो राहत की सांस महसूस कर रहे हैं और एक ठंडी सांस यहाँ पर ली गई है। लेकिन मनोज, ठंडी सांस तो लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती, खास तौर पर जो 3 हिंदी जो विधानसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की, इसको लेकर जो पिछले कई दिनों से लगातार घोषणाएं देख रहे थे, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। लेकिन यहां पर मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। रोचक इस दृष्टिकोण से क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 19 सालों से शिवराज सिंह चौहान जो हैं ये यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी बने हुए हैं। 15 महीने के लिए कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट है कि जो चेहरा, बीजेपी का चेहरा कौन होगा, बीजेपी का चेहरा कोई अभी साफ नहीं किया गया है। बीजेपी का चेहरा ये होंगे, देखिए हम आपको दिखाते हैं कि बीजेपी का चेहरा कौन होगा। मध्य प्रदेश में ये चेहरा शिवराज सिंह चौहान जरूर हैं, लेकिन पीछे हो चुके हैं। चेहरा नरेंद्र मोदी है। पार्टी ने संकेत साफ दे दिया है और कह दिया है, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह से पूछा गया था कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, पत्रकारों ने, उन्होंने कहा अभी शिवराज हैं, बाद में पार्टी तय करेगी। साफ है शिवराज चेहरा नहीं होंगे। राजस्थान में आपको लिए चलते हैं, हमेशा ये चेहरा होते हैं, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। अब वसुंधरा राजे चेहरा नहीं है। पार्टी ने कई सारे, मध्य प्रदेश में वो हो चुका है, तमाम सारे केंद्रीय मंत्रियों सांसदों को उतार दिया गया। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी नेता के तौर पर आ चुके हैं। अब राजस्थान में भी कई चेहरे, जिनमें कि दीपेंद्र शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, इसके साथ साथ दिया कुमारी, तमाम नेता आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी नरेंद्र मोदी ही चेहरा होंगे, ये साफ हो चुका है। रमन सिंह भले ही 2 कदम आगे हैं, लेकिन पार्टी इनके साथ 1 कदम पीछे है, वहां पर भी चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे। कुल मिलाकर ये विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर राकेश लड़ा जा रहा है। देखिए साफ तौर पे मनोज, थोड़ा हम लोग आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के तिथियों का ऐलान किया गया है, तो हम लोग भी थोड़ा चुनाव
मैदान में उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। मनोज, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चेहरा होगा, खास तौर पर जो जिक्र कर रहे हैं, राजस्थान में भी जो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र, कोई किसी चेहरे पर नहीं होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जो हैं उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे अर्जुना मेघवाल का जिक्र किया आपने, साथ ही साथ राठौर जो हुए, तो ऐसे कई चेहरे हैं जिनको मैदान में उतारने की भी बात चल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और रोचक मुकाबला जो है वो मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो रणनीति अपनाई गई है बीजेपी द्वारा, बीजेपी ने साफ किया है कि किस तरह से जो 8 सांसदों को मैदान में उतारा गया, जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री। इस खबर का जो ब्रेक किया था मनु जी ने, हमारे जो कि मध्य प्रदेश चैनल के हेड हैं, और उन्होंने हम लोग लेकिन यही फार्मूला जिसका जिक्र आप कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, यही फार्मूला छत्तीसगढ़ में भी अपनाया जा रहा है। 4 से 5 सांसदों को वहां पर चुनाव लड़ाया गया है। रायगढ़ की सांसद गोमती साय को बोल दिया गया है, वो चुनाव मैदान में उतर चुकी है, विधानसभा से तैयारी कर रही हैं। इसके साथ साथ राजस्थान में भी दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़, इसके साथ साथ दीपेंद्र शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र शेखावत, ये सब के सब विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। कैलाश चौधरी जो कि कृषि राज्य मंत्री, ये सब चुनाव में उतर रहे हैं। पार्टी इनको चुनाव में उतार रही है, यानी कि वो ये कहने वाली है कि हम वसुंधरा राज्य के भरोसे नहीं हैं, हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं। इससे पहले केंद्रीय नेतृत्व इस तरह की हिम्मत नहीं जुटाता था, लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व ने तैयार कर लिया है कि अलग अलग जो प्रदेश के इलाके हैं, जो अलग अलग इलाकों में बटे हुए हैं, वहां से भी हम बड़े बड़े चेहरे उतार रहे हैं। हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, हम किसी एक चेहरे के भरोसे नहीं है। मुख्यमंत्री होगा, कौन होगा, ये बाद में चुनाव परिणाम के बाद विधायक दल की बैठक तय करेगी। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है, क्या ये दुधारू तलवार नहीं होगी तब जबकि ऑर्गेनाइजर संघ ये कहता है कि क्षेत्रीय नेताओं को आगे बढ़ाओ, लेकिन केंद्रीय लीडरशिप, अभी की लीडरशिप तय करती है कि नहीं, चेहरा तो मोदी के भरोसे। देखिए, चेहरा इसलिए मनोज जी जानते हैं आप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के पास ऐसे बड़े चेहरे हैं कि दूसरे पार्टियों के पास इतना बड़ा कद का नेता नहीं है। हाँ। जिसकी स्वीकार्यता जनता के बीच में है, और यही वजह है कि बीजेपी ने इन राज्यों के लिए जो चेहरा अपनाया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय योजनाएं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसको लेकर बड़े बड़े इश्तेहार या जिक्र किया गया, जो प्रधानमंत्री की रैलियां हुई या मुख्यमंत्री की। लेकिन ये जरूर है कि इस बार बीजेपी ने पूरी तौर पर रणनीति बदला है। रणनीति यही है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है, भले ही ऑर्गेनाइजर की बात आप जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर स्टेट लीडरशिप को भरना चाहिए, लेकिन अब ऐसा समय नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि 19 साल से अगर एक ही चेहरा है वो है शिवराज सिंह चौहान का, जो कि मध्य प्रदेश में अब तक का शासन रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर जो हमलावर है, ठीक है, मैं मनु शर्मा का रुख करूंगा। राकेश, मनोज, मैं मनु शर्मा का रुख करूंगा। जयपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं मनु शर्मा और बाकी भी मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनु जी, तारीख का ऐलान हो गया है, 23 नवंबर को वोटिंग होगी, फिर 3 तारीख को परिणाम सामने आ जाएंगे। अब तक जो राजस्थान में चल रहा था, जो सारी चीजें हो रही थी, मेरे ख्याल से अब विराम लगा, सभी को आराम आया होगा, खासतौर पर अधिकारियों को। बिल्कुल, अधिकारियों को तो आराम है, लेकिन सीधे तौर पर अगर बताना चाहें तो मुख्यमंत्री आवास हो चाहे सीएमओ हो, वहाँ बड़ी तेज हलचल थी आज सुबह से ही। लगातार नियुक्तियाँ जो बोर्ड, निगम, इन सब के अंदर पहले से ये बना दिए गए, लेकिन नियुक्तियाँ नहीं हुई थी, तो उसके ऑर्डर धीरे धीरे निकल कर आ रहे हैं बैकडेट्स में। राजस्थान के अंदर भी ऐसा ही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 से ज़्यादा बोर्ड और निगम बना दिए थे, लेकिन नियुक्तियाँ किसी को नहीं दी। लगातार सचिन पायलट कहते रहे नियुक्तियाँ कर दीजिए, नियुक्तियाँ कर दीजिए, आज तक नियुक्ति हुई नहीं। अब लास्ट टाइम पर अधिकारियों को जो सेट करना है, अपने जो खुद के जो निकट के अधिकारी हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं जो है सेट करना है, चाहे आरपीएससी का मेंबर हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड का आदेश हो, इन सब के लिए बड़ी हलचल मची हुई है सुबह से, ये एक देखने को मिला है। दूसरा, अधिकारी जो है अब उनको फुर्सत तो मिल जाएगी, लेकिन जिम्मेदारियां जो है सीधे तौर पर आयोग ने बढ़ा दी। अब की बार चुनाव जो है साधारण नहीं है, लगातार सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। जिस तरह से राजीव कुमार ने कहा है कि राजस्थान भी वो बॉर्डर वाला क्षेत्र है जहाँ पर सीधे तौर पर चाहे स्मगलिंग का मामला हो, चाहे जो नोटों की जो खेप पकड़ी जाती है, ये सब मामले, उन सबको करीबन 900 चेक पोस्ट यहाँ जो है पूरे चुनावी जो राज्य हैं उनके अंदर बनाई गई है। तो ऐसे में राजस्थान भी अछूता नहीं है, उनसे जिम्मेदारियां बढ़ी हुई है, ये सब उनको जिम्मेदारी जो है उनको दी गई है। अब बात करें राजनीतिक दल की अन्य राज्यों के अंदर जो पड़ोसी राज्य हैं उसके अंदर सूचियां आ चुकी है, लेकिन राजस्थान के अंदर अभी तक दोनों पार्टियां उलझी हुई है।
चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बीजेपी की भी अभी तक कोई एक पहली सूची जारी नहीं हो पाई है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो है लगातार मंथन में जुटी हुई है, क्योंकि यहाँ भी दोनों जो बड़े नेता हैं, जिसके अंदर चाहे सचिन पायलट हो चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, उनमें जिस तरह की खींचतान रही, उसके चलते इस बार भी सूचियों के अंदर लंबी जद्दोजहद जयपुर में तो हो चुकी है, लेकिन अब दिल्ली के अंदर कब तक जारी होती है ये देखना होगा। आज मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत दिल्ली बैठे हुए हैं, CWC की जो बैठक चल रही है उसके अंदर भी मौजूद है, और वहाँ क्या कुछ निकल करके आता है, क्या आज जारी होती है, 2 दिन बाद जारी करते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर अगर बताना चाहें तो वसुंधरा राजे जिनको साइड लाइन किया गया है राजस्थान के अंदर, अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर हर इलाके में एक छत्र बड़ा खड़ा किया, जिसके अंदर आप अगर देखेंगे हाड़ौती जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जो क्षेत्र रहा है, वहाँ पर ओम बिरला सीधे तौर पर। मेवाड़ जो है वहाँ से 2 लोग, जिसके अंदर CP जोशी अभी प्रदेश अध्यक्ष है, दूसरी दिया कुमारी जो है उनको खड़ा किया गया। इसी तरीके से अगर देखें शेखावाटी के अंदर वहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल को खड़ा कर दिया गया। ये तमाम वो बड़े नेता हैं। जोधपुर है, वहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत को पूरा प्रमोट किया गया है। कैलाश सिंह है जो बायतू से लड़के आते थे, उनको अब ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी साफ तौर पर ये कहना चाह रही है कि चुनाव जो है सीधे रहेंगे, राजस्थान में अलग रहेंगे, मगर जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये है, अब तेलंगाना में तो हमको ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह दोबारा KCR तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारी पार्टी के MLAs भी कामयाब होंगे, जहां जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग लड़ेंगे। राजस्थान में हम लोग पहली मर्तबा लड़ने जा रहे हैं। जमील खान हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी लीडरशिप में हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की आवाम भी हमारे MIM पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देकर वहाँ पर उनका विधायक MLA बनाएंगे। लड़ने वाले सवाल है, और तेलंगाना में आप 8 सीटों पे लड़ते रहे हैं, तो अब क्या 8 से ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अभी आपने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि CM जो है फिर से रिपीट करेंगे, BRS की सरकार बनेगी, तो जो कांग्रेस आप पे आरोप लगाती है कि आप BRS के बी टीम है, तो आपने ऑफिशियली स्वीकार कर दिया कि आप हम तो सबकी लैला है ना। जब 2004 से 2012 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की तायद कर रहे थे, तो इनको जब याद नहीं आया, ये तमाम अपॉर्चुनिस्ट और ये सूडो सेक्युलर लोगों को, जब 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इनका हाथ छोड़ दिए, दामन छोड़ दिए, तो जब असदुद्दीन ओवैसी इनका साथ दिया था, MIM पार्टी ने साथ दिया था न्यूक्लियर डील के वक्त, जबकि किरण कुमार रेड्डी अर्सवाल आंध्र प्रदेश में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो असेंबली में MIM पार्टी के MLAs इनका साथ दिए थे। प्रणब मुखर्जी के प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया तो किसने कहा था असदुद्दीन ओवैसी को कि जाकर जगन मोहन रेड्डी को जेल में मिलो? नाम बोलूं सबका मैं अभी।